Pleasant good evening to everyone. This is Yashoda Chauhan, and thanks. As you all know, that the municipal elections are going on in Tauru, and here we have a candidate named as uh, Mrs. Payal Soni. So let's talk to us and let's know about the strategies which she will take forward with her for the development of Tauru. So, very good evening, ma'am, and thanks for being with us here. Thank you so much. You're welcome. So I just want to know like which strategies you are taking forward with you in these elections now. Present here. Uh, right now, the only basic idea or the thought that is, seeded within me, or that I want to plant or seed in this area, is that you first need to acknowledge everything where you're lacking, what are your positives, what are your negatives, and then only when you have a better understanding, acknowledgement about your area, about your your societies, your streets, your community, only then you can work forward, you can work towards it. Without acknowledgement, there cannot, an idea cannot prosper, it cannot function, and it cannot be implemented. So the very first strategy is to acknowledge in terms of everything. As I said, you need to acknowledge what you're good at, what you're missing out, and what can be done better. So that is the first strategy, that you acknowledge. And then after acknowledgement, you gather the data. How much? You first question what, and then you question how. And then you probably want to answer yes, this is the way you should, go forward. So that is the first strategy, basic strategy that I'm, going If we ahead will with. talk about the development, so there are only three sectors in development and those three sectors are the medical sector, the education sector, and the electricity and the water sector. Infrastructure, if we will talk about. So, what kind of strategies or what's are your plan regarding these three sectors in development? मुझे लगता है मैं इसको आगे हिंदी में Okay. सो जो हमारे थ्री बेसिक सेक्टर्स है, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर. आई थिंक कवर्ड ऑल थ्री इन माय speech Okay. 2 minutes back. Yes. So starting with the infrastructure, I have spoken about the condition of our streets, जो कि हमारी सड़कें हैं, हमारी बिजली है, हमारा पानी है, हमारा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, हमारा सीवेज मैनेजमेंट है. इन सभी पे मैं बात कर चुकी हूँ, एंड आई थिंक इन सभी में बहुत कमी है और इन सभी पे काम तुरंत प्रभाव से होना चाहिए. बिल्कुल. इफ यू विल टॉक अबाउट द मेडिकल सेक्टर, अगर हम चिकित्सा की बात करते जी. हैं तो इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की जो चिकित्सा है आपके क्षेत्र में है, पहली चीज तो ये. जी. और क्या कुछ डेवलपमेंट जो है होनी चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में. कहा जा रहा है कि काफी लिमिटेड मेडिसिन और काफी लिमिटेड लोगों को जो है इलाज दिया जाता है, जी. तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके की आप डेवलपमेंट करेंगे. कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाती है, एक्सीडेंटल केस होता है, मोस्ट ऑफ द लेबर पेन की अगर बात करते हैं फीमेल्स को होते हैं, तो उनको कहीं बाहर लेके जाना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि इतनी मिस हैपनिंग हो जाती है कि लोगों की जान तक चली जाती है, तो उस पर आप क्या कहना जी चाहेंगे. जी, बिल्कुल बिल्कुल आप गलत नहीं कह रही हैं. इस क्षेत्र में शिक्षा में भी, हमारे स्वास्थ्य में भी, और मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है. अब स्वास्थ्य पे आए तो हमारे यहाँ क्लिनिक्स तो बहुत हैं, छोटे छोटे, जो बेसिक, जो रोजमर्रा की परेशानी है उनके लिए यहाँ पर है मेडिकल सर्विसेज. पर बात करें किसी बड़ी दुर्घटना की, तो उसके लिए या तो हम रेवाड़ी जाते हैं जी, भिवाड़ी जाते हैं, या हम गुड़गांव जाते हैं जी. यहाँ नहीं है. अब परसों की बात है, यहाँ एक्सीडेंट हुआ था पटौदी रोड पे जी. और उनकी टांग टूट गई थी उन भैया की. वो मेरे घर से, मेरे जो देवर है उनके मित्र थे, उन्हें जानते थे. पहली बात तो कोई मदद करने नहीं आया, और फिर जब भैया गए, फिर उन्हें वो भैया लेके आसपास में, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन थी, उनकी पाँव बिल्कुल टूट गई थी, उन्हें लेके फिर वो ललड़ गए. ओके. तो इतनी बुरी वो है कि मतलब इमरजेंसी के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए यहाँ वो सुविधा लाना बहुत जरूरी है. आखिर जान चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, सबकी कीमती होती है. तो ये बात तो थी डेवलपमेंट को लेकर, तीनों क्षेत्रों की जो डेवलपमेंट होती है उसको लेकर. लेकिन कई बार जनता जनन के द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल खड़ा हो गया इलेक्शन में जी. एंड
पूरी प्रिपरेशन के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन इन लास्ट क्या होता है, जीत भी गए, नाउ दे आर इन द पावर, बट लेटर ऑन क्या होता है, जब उनका कार्यकाल जब शुरू होता है तो दे फॉरगॉट देयर ऑल द प्रोमिसेस, अपने सारे वादे भूल जाते हैं और वो जनता जनार्दन के सामने कभी आते तक नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आप किस तरीके का जो है कार्य जनता जनार्दन के सामने पेश करेंगे और किस तरीके से जो है उनकी उभर कर मदद करेंगे? सवाल आपने बहुत अच्छा करा है और ऐसे सवाल करना जरूरी भी है। पहला जवाब इसका ये होगा कि आप इलेक्शन फिर रखते क्यों हैं? सरकार इलेक्शन रखती क्यों है? अगर यही बात है तो सरकार क्यों अवसर देती है लोगों को काम करने का? तो अवसर मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। अब ये जनता के ऊपर है कि वो अपना विश्वास किस में रखते हैं। जी और हमारे और बड़े परिवार को यहाँ सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। रात को 2 बजे भी कोई मदद के लिए आता है ना, तो इस परिवार से खाली हाथ नहीं जाता है जी। ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हुआ। वादे सब करते हैं, मैं तो सिर्फ अपने मन की बात रख रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है यहाँ मेरे मन की बात सबके मन तक भी पहुँच रही है। वो मुझ में विश्वास दिखा रहे हैं। भगवान का दिया सब है जी, लालच किसी चीज का नहीं है। लालच है तो इतना कि मेरे भी बच्चे हैं, उनको भी वो अधिकार मिले, वो पढ़ाई का वो फैसिलिटी मिले जो मैं इसी देश में कहीं और से लेके आई हूँ। तो उन्हें भी वो मिलना चाहिए। ऐसी बहुत माताएं हैं यहाँ जो मेरे से बिल्कुल सहमत होंगी कि हमारे बच्चे पीछे क्यों, यहाँ से बाहर जाएं तो पीछे क्यों, वो अपॉर्चुनिटी में पीछे क्यों, पढ़ाई में पीछे क्यों, हम सब शिक्षा स्वास्थ्य में पीछे क्यों। बस तो ये इसी के साथ हाथ जोड़ के मैं आप सबसे धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति महोदया से सम्मानित कोई प्रत्याशी आपके बीच में आए और हमसे कहीं कोई चूक हो जाए तो मैं समझता हूं कि कभी भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमें माफ नहीं करेगी कि आपके बीच में इतनी काबिल, इतनी शिक्षित और इतनी बुद्धिजीवी एक प्रत्याशी का आई थी और आपने की। वैसे जहां भी